السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں میرا سوداگر میرا دلدار کے ایپیسوڈ نمبر 11 کے ساتھ۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ آپ لوگوں کے کمنٹس دیکھ کر مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی محنت آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے، تو کائنڈلی اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہیں۔ بنا وقت کو ضائع کیے ہم آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تم مجھے ایسے کیا دیکھ رہی ہو لڑکی کہ اب تمہیں احساس ہو گیا ہے کہ میں سردار سے زیادہ ہینڈسم ہوں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا تو عفاف کی ہنسی اڑن چھو ہوئی۔ سردار کے اتنے کراہیت آمیز رویے کے بعد علیان کی ہمدردی اس کے دل پر مرہم کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ نہایت اچھا دوست ثابت ہوا تھا۔ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے سردار کے اتنے کراہیت آمیز رویے کے بعد علیان کی ہمدردی اس کے دل پر مرہم کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ نہایت اچھا دوست ثابت ہوا تھا۔ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی، یہاں تک کہ اسے بری طرح کھانسی شروع ہو گئی تو عفاف اس سے لیے ہوٹل سے باہر نکلی۔ وہ ہاسپٹل اور اپنے گھر دونوں جگہ جانے پر ہی رضامند نہ تھا۔ آخرکار ڈرائیور نے انہیں علیان کے عالی شان اپارٹمنٹ میں پہنچا دیا۔ اس نے ڈرائیور کے ساتھ مل کر اسے لٹایا جو تھوڑی ہی دیر میں بخار سے تپ رہا تھا۔ عفاف نے فوراً ڈرائیور کو میڈیسن لینے بھیجا اور اس کے بھائی بہرام شاہ کو کال ملا کر صورتحال سے آگاہ کیا۔ فی الحال تم اس کے ساتھ رہو جب تک ہم نہیں آ جاتے۔ ویسے میں نہیں جانتا تھا کہ علیان کسی لڑکی کے ساتھ اپارٹمنٹ جانے پر رضامند ہو سکتا ہے۔ بہرام شاہ نے ناسمجھی سے کہا، آپ ہمارے رشتے کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ آپ پلیز یہاں آ جائیں تاکہ میں یہاں سے جا سکوں۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں کہتے ہوئے کال کاٹی۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھے یہ سوچ رہی تھی کہ اگر سردار کو ماریہ کی اتنی ہی فکر ہے تو اسے دکھ پہنچانے کے لیے وہ مجھ سے کیوں کھیل رہا ہے؟ آخر کیوں؟ اس نے مٹھیاں بھیجتے سوچا تھا۔ وہ علیان کے لیے پانی لینے گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو وہ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ عفاف نے اس کے پاس بھاگ کر آتے ہوئے کہا، لیکن اس کے پاس آنے سے پہلے ہی وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر چکا تھا۔ عفاف بغیر تاخیر کیے اسے ہاسپٹل لے کر گئی۔ علیان کے پیرنٹس بھی وہاں آ چکے تھے۔ کیسا ہے میرا بھائی؟ بہرام شاہ نے اندر آتے ہوئے کہا۔ اب ٹھیک ہے، بس فوڈ پوائزننگ ہو گئی تھی، عفاف نے جواب دیا تھا۔ تو تم ہو وہ لڑکی جو علیان کے ساتھ تھی کل؟ بہرام نے اس کی گردن پر نشان دیکھتے کہا تو عفاف نے فوراً دوپٹے سے خود کو کور کیا تھا۔ نہیں، آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، وہ بس میرا دوست ہے، اس کے پاس کوئی نہیں تھا، اسی لیے میں رک گئی تھی۔ اب آپ آ گئے ہیں تو میں چلتی ہوں۔ عفاف نے وہاں سے دامن بچا کر نکلنا چاہا۔ میرا سوداگر میرا دلدار قسط نمبر 11 پارٹ 2 رائٹر ایمن رضا۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آپ کو نیو ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ بنا وقت کو ضائع کیے آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تم یہیں رک جاؤ، صبح تک پلیز، وہ اٹھے گا تو اسے اچھا لگے گا۔ بہرام شاہ نے پہلی دفعہ اس سے نرمی سے بات کی تھی۔ ہاں بیٹا پلیز رک جاؤ، مجھے اور بہرام کو کہیں جانا ہے، اس طرح تمہاری آنٹی اکیلی رہ جائیں گی۔ علیان کے بابا نے پیار سے کہا تو وہ رد نہ کر پائی۔ ٹھیک ہے۔ اس طرح وہ فجر تک جاگتی رہی اور نماز ادا کرنے کے بعد علیان کی والدہ کے اصرار پر کچھ دیر کے لیے وہیں بیٹھی بیٹھی سو گئی۔ علیان بیزارگی سے، مجھے گھر جانا ہے، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ علیان بیزارگی سے بولا تو اس کی آواز پر عفاف کی آنکھ کھلی۔ عفاف تم ہی سمجھاؤ نا، اسی کی جانے کی ضد کر رہا ہے۔ علیان کی ماں نے عفاف کو کہا۔ عفاف تم ابھی تک یہاں ہو؟ علیان نے خوشی سے کہا تھا۔ ہاں بیٹا، عفاف کل رات کی یہیں ہے میرے ساتھ، میرے ہی اصرار کرنے پر تھوڑی دیر پہلے ہی وہ سوئی تھی۔ علیان کی ماں نے علیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ علیان تمہاری ماما صحیح کہہ رہی ہیں، تمہارا ابھی گھر جانا ٹھیک نہیں ہے۔ عفاف نے علیان کی ماں کے اصرار پر بھری نظریں دیکھتے ہوئے اسے قائل کرنا چاہا۔ ٹھیک ہے، مگر کیا تم بھی میرے ساتھ 2 دن یہیں رکو گی؟ علیان نے دلچسپی سے پوچھا۔ ٹھک! اس سے پہلے کہ وہ اسے منع کرتی کسی نے ٹیبل پر زور سے گلاس پٹخا۔ جب اس نے پیچھے دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ سردار، یلدرم اور ذیشان وہاں پیچھے کرسیوں پر پتہ نہیں کب سے موجود تھے۔ اوہ، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ عفاف نے سردار کو دیکھتے ہوئے دل میں کہا۔
आलियान की वालदा बाहर चली गई थी। बताओ ना आफाफ, तुम पीछे क्या देख रही हो? क्या सरदार को देखकर तुम मुझे भूल गई हो? आलियान ने सरदार को चिढ़ाते हुए आफाफ से कहा था। तुम बताओ सरदार, कितने पैसे देने हैं आफाफ ने तुम्हारे? वो तुम्हें मैं दे दूंगा, मगर आफाफ का पीछा छोड़ दो। आलियान के संजीदा लहजे में कहने पर सरदार तमस्खुराना अंदाज में मुस्कराया और बोला, क्या वाकई लिटिल थिंग तुम बताना पसंद करोगी कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या आलियान के? सरदार ने शिद्दत पसंद लहजे में कहा, जैसे जानता हो कि आफाफ इनकार कर ही नहीं सकती। मगर आफाफ ने सिरे से ही उसकी बात को इग्नोर किया और आलियान के पास खड़ी रही। कल के हितक आमेज़ लहजे के बाद से तो वो सरदार की शक्ल तक देखने की रवादार नहीं थी। वो जाके उसकी बात मानती। ये तो सरदार की पसंद है, फिर तुम्हारे साथ क्या कर रही है? यलदरम ने कंफ्यूज होते कहा, मेरा भी यही सवाल है। ज़ीशान ने भी बीच में हिस्सा डाला था और सरदार का चेहरा वक्त गुजरने के साथ साथ सुर्ख पड़ता जा रहा था। आफाफ, शायद तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सरदार के सर्द लहजे में कहने पर वहाँ मौजूद हर शख्स के जिस्म पर सर्द कपकपी भरी लहर दौड़ी थी, क्योंकि जितना सरदार का लहजा सफाक था उससे सभी वाकिफ थे। जब भी वह ऐसे बोलता आगे वाले की खैर नहीं होती थी। मैं तुम्हें पानी डाल कर देती हूँ आलियान। उसने एक दफ़ा फिर सरदार की बात को नज़रअंदाज किया था और यहाँ सरदार से बर्दाश्त न हुआ। वो उठा था और धड़ाम से रूम का दरवाज़ा बंद करते निकलता चला गया। वाकई लड़की, तुम में कुछ तो बात है, मानना पड़ेगा, जिसने सरदार को नाके चने चबवा दिए। ज़ीशान ने तालियां बजाते हुए कहा, बिल्कुल, आज तक जो सरदार के साथ कोई नहीं कर सका वो तुमने कर दिया। और मज़े की बात यह है कि सरदार ने बर्दाश्त भी कर लिया, वरना अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो इस वक्त ज़मीन के ऊपर न होता बल्कि कई फुट नीचे होता। यलदरम ने एक आईब्रो झुकाकर आफाफ को काबिल तहसीन लहजे में कहा, जबकि आफाफ ये सोच रही थी कि अब सरदार उस पर गुस्सा किस अंदाज में निकालेगा। उसके जाते ही आफाफ के फ़ोन पर उसकी कॉल आई थी, मगर उसने फिर हिम्मत का मुजाहरा करते उसकी कॉल नहीं सुनी थी। दूसरी तरफ काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद आलियान उसके सामने शादी का प्रपोज़ल रख चुका था, जिसका जवाब उसने कुछ यूँ दिया था, आलियान, मेरे लिए एक तजुर्बा काफ़ी है। मैं अब किसी से भी कोई ऐसा रिश्ता नहीं बनाना चाहती, ना अभी और ना कभी। और आइंदा ऐसी बात मेरे सामने मत करना, वरना मुझे लगेगा कि मैंने अपना दोस्त भी खो दिया। आफाफ ने संजीदगी से कहा था। ठीक है आफाफ, मैं तुम्हारे जवाब की कदर करता हूँ। अब मैं तुमसे इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जब ज़िंदगी के किसी मोड़ पर ऐसा लगे कि तुम तन्हा हो, मेरा हाथ थाम लेना, क्योंकि मैं यहीं रहूँगा हमेशा, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए, जब तुम कहो। इस नाचीज़ को याद कर लेना। लेकिन एक और बात, बेशक तुम मुझे रिजेक्ट कर चुकी हो, लेकिन सरदार को मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूँगा। तुम उसके लिए मना नहीं करोगी, वादा करो। उसने लाख मना करना चाहा, मगर आलियान नहीं माना। वो उसे हॉस्टल के अंदर जाता देख रहा था। जैसे ही वो हॉस्टल से बाहर निकला, सरदार की गाड़ी से टेक लगाए उसे मुस्कुराती नज़रों से देख रहा था। क्या मैं समझूं कि तुम्हारा दिल अपने भाई जैसे दोस्त की लड़की पर आ गया है? आलियान सरदार की बात सुनता वहीं आकर रुक गया। सरदार, जल्द या बदेर वो लड़की तुम्हें छोड़ देगी, इसके पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं। आलियान ने उसे समझाना चाहा। मुझे पता नहीं था कि अब मुझे अपने फ़ैसले दूसरों की मर्ज़ी से कहने होंगे, उसने तमस्कुराना अंदाज में कहा। वो भी यही चाहती है, वो भी यही चाहती है, और मैं ज़्यादा देर उसे तुम्हारे साथ रहने नहीं दूंगा। आलियान के टेढ़े अंदाज में कहने पर वो मुस्कुराया, जैसे गेम जीत लेने के बाद की मुस्कुराहट होती है। और ऐसा क्यों करोगे तुम? उसने आईब्रो उचका कर पूछा। इससे पहले कि तुम्हारे अंकल आफाफ से छुटकारा हासिल करें, मैं तुम्हें उससे छुटकारा दिलवाना चाहता हूँ, ताकि वो कोई तुम्हें नुकसान ना पहुँचा सके। लड़कियाँ तो तुम्हारी ज़िंदगी में और भी आ जाएंगी, मगर तुम अंकल से अपना रिश्ता ख़राब मत करो आफाफ के लिए। उसे मैं संभाल लूँगा। उसकी बात पर सरदार का गाड़ी पर बड़ा फ़ोन बिलिंग हुआ। जैसे ही आलियान ने फ़ोन की स्क्रीन देखी तो आफाफ को कॉल मिली हुई थी। टाइम ड्यूरेशन से साफ होता चल रहा था कि आफाफ उनकी सारी बातें सुन चुकी है। उसने एक नज़र सरदार को देखा और वो समझ गया कि ये सरदार की ही चाल थी। 5 मिनट में नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, सरदार ने आफाफ से कहा, जो गुमसुम सी उनकी बातें सुन रही थी।
हाँ कह कर उसने कॉल काट दी। इस दुनिया में तो सारे मफाद परस्त हैं, तो फिर मैंने आलियान पर कैसे यकीन कर लिया? वो भी तो सरदार का ही दोस्त है ना। कितनी बड़ी पागल हूँ मैं जो उसके फरेब में आ गई। हरीम, मुझे जाना होगा, मगर कहाँ? वो भी इस वक्त? हरीम ने हैरत से पूछा। अपने शौहर के पास। ये कहते ही वो वहाँ से जा चुकी थी, जबकि हरीम, जो सदमे में घिरी खड़ी थी, फ़ौरन भागकर खिड़की के पास गई जहाँ सरदार उसका इंतज़ार कर रहा था। क्या सरदार आफाफ का शौहर है? उसने हैरत अंगेज़ लहजे में खुद से सरगोशी की। वो बग़ैर आलियान की तरफ देखे गाड़ी में आकर बैठ गई थी। आफाफ ने तो मुझे देखना भी गवारा नहीं किया। यकीनन वो अब मुझे बुरा समझ रही होगी। आलियान ने दुख से सोचा और वहाँ से चला गया। अब कुछ नहीं बोलोगे आलियान? उसने आलियान को चिढ़ाना चाहा, मगर वो वहाँ से उसकी सुने बगैर जा चुका था। उसके जाने के बाद सरदार भी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। क्या हुआ? उसके जाने का ज़्यादा गम लग गया है? कहीं तुम उसको दिल तो नहीं दे बैठी थी? उसकी बात के जवाब में भी वो कुछ ना बोली। जब वो घर पहुँचे तो मारिया डाइनिंग टेबल पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो दोनों भी वहीं आ गए। आफाफ ने जब देखा कि मारिया उसकी जगह पर बैठी है तो वो उसके साथ वाली कुर्सी घसीट कर बैठ गई। ये देखकर सरदार की तेवरी चढ़ी थी। ये लड़की खुद की जगह भी नहीं जानती, कितने आराम से अपनी जगह उसको दे दी। सरदार ने गुस्से से दिल में सोचा था, इसको तो मैं भी बताता हूँ। सरदार की खाना तुम्हारा फेवरेट है ये। मारिया ने सरदार की प्लेट में फ्राइड चिकन डाला। उन्होंने सरदार तो मेरे अलावा किसी के हाथ से भी खाना सर्व नहीं करवाते। अफ़ाफ ने सरदार के सर तासुरात देखते दिल में कहा था कि अब मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा लड़की कि तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है यहाँ, और मुझे खाना सर्व करो और तुम ये प्लेट ले जाओ। उसने पहली बात अफ़ाफ से करने के बाद में मुलाजमा से वो प्लेट उसके आगे से उठाने को कहा जिसमें मारिया ने उसके लिए खाना डाला था। मारिया का चेहरा तौहीन से सुर्ख हुआ था। अफ़ाफ ने सरदार को खाना डाल कर दिया और फिर उसके साथ खाना ख़त्म करने तक वहीं रुकी रही। जैसे ही वो अंदर आई, सरदार ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया था, जो बग़ैर किसी ज़िद के उसके पास आराम से आ गई थी। क्या हुआ? क्या आलियान की बेवफाई से तुम्हें दिली दुख पहुंचा है कि तुम मेरे साथ ताउन करने पर आमादा हो गई हो? सरदार ने तंज़िया लहजे में कहा तो उसने आंखें उठाकर उसे देखा। शायद अगर आपको याद हो तो आपने कहा था कि अगर तुम मेरे साथ वफ़ादार रहोगी तो आप भी मुझसे सही से बात करेंगे। अब जब मैं आपकी ज़िम्मेदारी बग़ैर किसी मुश्किल के निभा रही हूँ तो प्लीज़ आप भी मेरे साथ आराम से पेश आइएगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये कहते ही उसने अपने आप को सरदार के हवाले कर दिया था।